In this video, I'll be checking out an electric scooter where you do not need a license or a RTO registration. So stick around. BGAUZ is a solution which comes from one of the electrical veterans, RR Cable, and the house of RR Global. They started their journey in 1986 where they created automobile switchgears, pump, relay, and then as years went by, finally in 2020 they started the delivery of the BGAUZ. Now in this video, I'll be looking at two scooters from the staples of BGAUZ. I'm at the showroom at Nerul. I'm looking at the BGAUZ A2 model, which is a low-speed electric scooter which lets you ride 110 kilometers in a single charge, which is ideal for city and short distance commute. The best thing about this scooter, since its top speed is only 25 kilometers per hour, it does not need neither a license nor it needs to be registered from the RTO. It's like owning your own unicycle. Yes, you still need to protect yourself by wearing a helmet. Now this model A2, the color is Caspian blue. It comes with LED headlights, LED taillights, LED indicators and LED DRLs. As you see, there is a mobile holder to place your mobile. It comes with high beam, low beam, turn indicators, one horn on the left and a reverse. It comes with an LED screen which is IP65 water and dust resistance. Do let me know your thoughts on the LED touchscreen in the comment section. This comes with 3 driving modes, which in my opinion does not make any sense since the top speed of this vehicle is 25 kilometers per hour. Also another horn on the right. What do you guys think about the 2 horn switches in this bike? So guys, just check out the horn sound. A neat foldable hook provided, a neat way to disguise this, but I doubt this can hold a lot of weight, and as this is spring-based hook, over the period of time it might get loose. Nice to see anti-slip floorboards. A2 comes with a 250 watt water and dust resistant BLDC motor, the top speed of 25 kilometers, which has 3 driving modes customized as per the requirement and convenience. It also has a unique foldable foot pegs, which is quite uncommon. Now the A2 comes in 2 battery types, the lithium battery, which can be removed and gives a speed of 16 kilometers per hour with an estimated range of 110 kilometers. And the second option is a lead acid battery, which is fixed and which also gives the same speed of 16 kilometers and an estimated range of 110 kilometers with a load capacity of around 150 kilometers. Now let's look at the B8 1.9 kilowatt BLDC motor, which is water and dust resistant. It comes with 3 driving modes and has 2 different types of batteries, which is the lithium ion and the lead acid, with a load capacity of 150 kilometers. It comes with standard hydraulic spring loads and telescopic suspension in the front. As you see, it comes in these 3 colors, and as you see, the headlights is LED, taillights are LEDs, the turn indicators are also LEDs. As you see the charge socket, there is also a charger which can be hooked to the scooter. As you see, the battery can be charged and it will denote if it has reached 50%. Once it reaches 50%, the light will turn on, and once the battery is fully charged, this will auto cut off, so thereby not worrying about overcharging. Now most EVs come with this feature with a reverse gear, and it is quite handy when you are in tight places. So welcome to TD Reviewer in this conversation with an EV user and a purchaser. So I would like to hand over the video to him, and he'll give you a brief description of about himself and what was his take on going for the BGAUZ B8 model. So sir, let's start off with this conversation with आपका नाम थोड़ा आप शुरुआत से आप बता दो. मेरा नाम है संजय नीलकंठ नाइक. मेरे पास पहला एक्टिवा 3G गाड़ी था. वो मेरे को पेट्रोल का गाड़ी था. तो मैंने BBS B8 का मॉडल लिया. ओके. पेट्रोल महंगा होते जा रहा है.
आप कितना साल से आप ये एक्टिवा चला रहा है? 4 ईयर 4 साल से। 4 ईयर से सो आप 4 साल से आप एक्टिवा चला रहा था, तो आपका रफली डेली कम्यूट कितना है? आप कितना दिन में कितना बार आप गाड़ी कितना किलोमीटर चलाता है? वो जो सर मैं 25-30 किलोमीटर चला था। 30 किलोमीटर। सो आपको अभी तो करंट सिचुएशन है कि पेट्रोल का प्राइस ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ हो रहा है, तो उसका आप कॉन्वर्सेशन में ये जो प्रॉब्लम जो है पेट्रोल का ज़्यादा महंगाई बढ़ रहा है और उसका मेंटेनेंस को आपको मतलब रफली एक महीने में आप एक्टिवा जो अच्छा ब्रांड है स्कूटर है वो कितना आप खर्चा करता है उस पर? उसके सर मेरे को 3,500 खर्चा था। 3,000 पर मंथ। पर मंथ। सो आप ये जो मॉडल जो B-Gauss का B8 जो मॉडल है, मैं भी टेस्ट ड्राइव किया था रिसेंटली, तो आप ये मॉडल आपको कैसा, व्हाट मेड यू वांट टू बाई दैट मॉडल? अभी वो बहुत सारा गाड़ी मार्केट पे है, हीरो का है, फिर अपना TVS का भी है, लेकिन आप ये पर्टिकुलर मॉडल जो B8 मॉडल है आप इस पर कैसा, मतलब क्या डिसीजन कैसे लिया था? वो सर गाड़ी मेरे को मॉडल एकदम छोटा गाड़ी है और मॉडल अच्छा एकदम। ओके, तो आपको कैसा, जब आप यहाँ पे नेरुल में हैं, आप इन द वीडियो आपको देखेगा कि वो मॉडल आप जहाँ वहाँ पे आएगा तो आपको कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा था वो B-Gauss का? गाड़ी एकदम हल्का है और चलाने के लिए एकदम स्मूथ है। ओके, अभी आप कितना टाइम से ये गाड़ी चला रहा है B-Gauss? अभी आज 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गया। तो आपका कैसा, व्हाट इज़ योर मतलब क्या बेनिफिट्स है EV चलाने में? कुछ मतलब अपने को गाड़ी एकदम स्मूथ चल रहा है और अपने को कुछ खर्चा नहीं उसमें कुछ। ओके, तो अभी तक आपको कुछ खर्चा नहीं हो। आप तो जो अपना व्यूअर्स है, जो सब्सक्राइबर्स जो अपना चैनल, मेरा चैनल जो व्यू कर रहा है, आप उन लोगों को क्या बताना चाहता है कि मेरा फॉलोअर्स बहुत सारा मेरे को पूछा है कि उन लोगों को EV लेने हैं, स्कूटी लेने हैं, तो आपका क्या राय है कि वो लोग क्या करना चाहिए? पर अभी लेने मांगते हैं, पर बारिश है, अभी बारिश सीजन है, वो तभी आपको मालूम गिरेगा। ओके, बारिश मेरे को भी मालूम है ना, बारिश। हाँ, बारिश में कैसा होगा वो देखना पड़ेगा। ओके, नहीं अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा है? अभी 3 महीने में कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो आपका डेली कम्यूट अब अभी चार्जिंग कैसा आप? चार्जिंग हम लोग अंदर बैटरी उसके गाड़ी के डिक्की के अंदर है, हाँ, वो निकल के घर पे लेके आना पड़ता है। ओके वो बाद में चार्जिंग 3-3.5 घंटा करने का ओके और 50 किलोमीटर चलता है। ओके, 50 किलोमीटर आप चलाते, तो डेली आप रिचार्ज करता है उसको? 2 दिन के बाद। 2 दिन के। तो आपका डेली अभी कम्यूट कितना, 60 किलोमीटर होता है? मेरा टोटल है 50 किलोमीटर्स डेली होता Daily है हो जाता है। और आपका B8 जो मॉडल है उसको मतलब सेटिस्फाई हो रहा है उसमें? हो रहा है। तो तब अभी जब से आप ये गाड़ी लिया, आपका एक्टिवा आप क्या करते हो नहीं, उसको मैं लॉन्ग ड्राइव के लिए? लॉन्ग ड्राइव के लिए कर रहा हूँ। ओके, सो लॉन्ग ड्राइव के लिए आप सपोज, तो सब व्यूअर्स को यही है, तो अभी जो करंट सिचुएशन आपका जो मॉडल है B8, उसका रेंज ज़्यादा नहीं है, आप लंबा नहीं जा सकते, बॉम्बे लेके नहीं जा सकते, आपका लोकल कम्यूट के लिए परफेक्ट है। लोकल के लिए बहुत परफेक्ट। ओके, तो आपका ये यहाँ पे से, मतलब वाशी आ सकते हैं। ओके, सो यहाँ से नेरुल से वाशी से आप पनवेल तक लेके गया गाड़ी? मैं वाशी तक लेके गया। वाशी तक लेके गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हाईवे पे जब चला रहा था? कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो स्पीड का कुछ प्रॉब्लम हुआ? मतलब 40-45 का स्पीड है इसका। ओके, मैक्सिमम 45। ओके, उसके ऊपर गया ऊपर नहीं जाता है? नहीं जाते ही नहीं। जाता ही नहीं है। तो आप वो जो 3 ड्राइविंग मोड्स जो बोलता है, आप यूज़ किया वो ड्राइविंग मोड्स? वो एक 3 मोड रहता है ना उसमें, आप यूज़ करके देखा? नहीं देखा अभी। नहीं देखा है। नहीं ओके, तो आप एक्सप्लोर नहीं किया, मतलब 50 किलोमीटर तक मिलता है, हाँ। आपको टेंशन नहीं उसका? ओके, तो आप क्या मतलब अभी नया कोई बंदा जिसको गाड़ी लेना है, आप क्या सजेस्ट करेगा, क्या आपका रिव्यू क्या है, मतलब इस गाड़ी 3 महीना यूज़ करने के बाद आपका क्या ओपिनियन क्या है इसके बारे में? आप अभी मत लो गाड़ी। ओके, बारिश के बाद। ओके, सो वो एक अच्छा सजेशन है कि गाड़ी अभी समर में लेके मतलब नहीं है। नहीं। तो आपको कितना पड़ा जब आप ये खरीदने गया, तो आपको कितना पड़ा? 88,000। तो उसको कुछ डिस्काउंट्स मिला? वो पहला 93 बोले थे। ओके 5,000 कम कर दिया। ओके, कुछ ऐसा कुछ डिस्काउंट्स नहीं है? ओके, सो आपको जब ये गाड़ी लेगा कुछ EV का पॉलिसी जो भी मतलब गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडीज मिलता है कुछ नहीं ना, मिला। तो आपको डायरेक्टली गाड़ी मिलता है, नंबर प्लेट भी, आपको कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कुछ प्रॉब्लम नहीं है?
4 साल इंश्योरेंस दिया ओके और PUC पीयूसी वो PUC नहीं है इसमें पीयूसी नहीं होता PUC है नहीं। ना? या तो इसमें क्या है, मतलब सिर्फ वो लोग रजिस्ट्रेशन सब करके देते सब हैं, करके देते। तो आपको 88 सब कुछ करके दिया। करके और कितना दिन में ये गाड़ी मिला? मेरे को एक 5 दिन में मिला 5 दिन में। तो उस वेट पीरियड कुछ प्रॉब्लम नहीं था? वो तो उन्होंने करके दिया। हाँ। तो क्या आप जाके उसको जाके लेना पड़ेगा ना? हाँ जाके जाके लेना पड़ेगा। ओके। तो आपका उसमें क्या अभी कुछ सर्विसिंग कुछ करना पड़ा उसका? नहीं कुछ नहीं, वो सिर्फ वो लोग क्या करते हैं उनको बुक दिया बुक रेट हाँ और 3 महीने उनका रह जाए 50 मतलब 500 किलोमीटर मतलब 1000 तभी वो लोग ओके। सर्विसिंग करेंगे। और तो इसमें कितना किलोमीटर में आपको कुछ सर्विस का कुछ है लोग का, कैसा है पॉलिसी? मतलब अभी 700 किलोमीटर में हो गया था, ओके अभी वापिस 1400-1500 किलोमीटर में वापिस सर्विसिंग होगी। ओके। तो उसमें क्या सर्विस में क्या करता है वो लोग? गाड़ी धोते हैं और कुछ प्रॉब्लम थी बॉडी मतलब बैटरी को कुछ लूज हो गया क्या वो बस उतना है। बाकी ब्रेकिंग आपका कैसा, गाड़ी चलाते वक्त आपको ब्रेकिंग का कुछ इशू हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। और आपका एक्सपीरियंस बिगॉस के साथ बहुत अच्छा था? बहुत अच्छा। तो आप रेकमेंड करेगा ये गाड़ी किसी को, अभी किसी को लेना है, अभी व्यूअर्स देखेगा, बहुत सारे लोग कमेंट करेगा, आप भी किसी को रिकमेंड करेगा तो ये वीडियो किसी को बोलेगा देखने के लिए, तो आपका रिकमेंडेशन रहेगा कि गाड़ी अच्छा है गाड़ी और तो- आप बारिश के बाद लेना चाहिए? बारिश के बाद में ओके। अभी तो बारिश का अभी आपको भी नहीं पता होगा, बारिश जब आएगा तब पता लगेगा कि कैसा वही है ना उसका। बैटरी कैसा प्रॉब्लम है क्या देखना पड़ेगा ना। बट वो सील्ड यूनिट रहता है तो आपको कुछ प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। मतलब आपको निकल देना बारिश, हाँ तभी आप लोग को खोलने के बाद मालूम गिरेगा ना। ओके बारिश का प्रॉब्लम कुछ होना नहीं मिलता। ओके। सो उसके लिए आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो थैंक यू सर, थैंक यू संजय फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस फर्स्ट कॉन्वर्सेशन। आ रहा है ना? कैसा करता है? बिना गाड़ी भी कर सकते हो। हाँ। तो अभी क्या गाड़ी चालू हो गया। चालू हो गया? हाँ ये ब्रेक दबाओ। ओके। ये 2 ब्रेक है? हाँ वो तो मेन है ना, ये इस पे जा रहा है। ओके। तो दो Oh, so you see